Dear students, welcome to another yet exciting lecture of Android operating system. इस लेक्चर जो कि हमारा 20वां लेक्चर है मोबाइल और परवेसिव कंप्यूटिंग का, इसमें हम एंड्रॉयड को कंटिन्यू करेंगे डिस्कस करना और वी विल ट्राई कि आज हम इस चैप्टर को क्लोज करके वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेक्स्ट टॉपिक्स इन दिस एरिया. एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वी आर डिस्कसिंग कि हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपस में इंटरेक्ट किस तरीके से करती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट गोज इनसाइड द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स मेड ऑफ एंड व्हाट आर देयर फंक्शनैलिटीज. हमने देखा कि कुछ जो components हैं Android के they are written in C++, whereas some are written in Java at higher level. फिर हमने ये भी देखा कि there are some components which are entirely rewritten for efficiency purposes. That efficiency can be memory, then that efficiency can be the speed up that we gain out of this. इसके दो जो examples थी, prime example थी. एक तो हमने देखा कि instead of glibc जो कि लिनक्स कर्नल का पार्ट है, उसकी बजाय एंड्रॉयड में वी गेट अनदर कंपोनेंट दैट इज़ कॉल्ड libc. और उसका रीज़न हमने देखा कि इन एडिशन टू एफिशिएंसी दैट इट ब्रिंग्स, अनदर रीज़न फॉर ब्रिंगिंग इन libc इज़ दैट ऑफ द लाइसेंस. कि व्हाट एंड्रॉयड वांट्स इज़ टू गिव पीपल लेवरेज कि अगर वो कोई चीज़ ओपन सोर्स में रिलीज़ नहीं करना चाहते and they want to keep something proprietary, तो उनको they should have this facility कि वो अपनी चीज़ों को proprietary रख सकें. जबकि glibc अगर हम यूज़ करें तो उसको यूज़ करते हुए ये possible नहीं है because glibc is provided you under the GPL license. GPL license, General Public License, says that anything written using GPL license should be available under GPL license too. That is a setback for those who have some proprietary things to do. For example, if you have written some innovative algorithms in your device drivers, आपने अपनी graphics को improve करने के लिए एक innovative algorithm बनाया है, या आपने audio levels को या audio noise reduction को cater करने के लिए एक बहुत innovative algorithm device किया है, you would be very reluctant to make it a part of open source because these kind of things take a lot of investment, lot of commitment from any organization. So to make it possible and to take this reluctance away, Android decided that okay, we will write our own component and we will provide that component under relaxed licensing environment so that anybody who wants to keep their things proprietary can do so. And this is the philosophy behind introducing libc. Then we have another custom-made component in the virtual machine. Instead of Java virtual machine, Android opted for Dalvik virtual machine. और उसके हमने रीज़न देखे कि रीज़न उसकी मेमोरी एफिशिएंसी थी, रीज़न उसकी जो है वो स्पीड अप जो हमने उससे गेन किया बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस, बिकॉज ऑफ डिफरेंट मशीन आर्किटेक्चर दैट Dalvik ऑप्ट फॉर. तो ये कुछ कस्टम मेड कंपोनेंट्स थे जो कि which are purposely made part of Android operating system to make sure that it conforms to the strict requirement of the mobile environment where it will run. Mobile environment की जो number of restrictions that mobile environment brings into play that include आपकी limited battery life होती है, limited storage होती है, you have limited speed available to you, and then in addition Android also imposes this restriction that they have no swap space available. जब swap space आपके पास available नहीं होती है तो that means that you can't bring memory pages in and out of the system. अगर आपके पास if you are running out of memory then you will have to kill it, and this is what is called out of memory management in Android, OOM. इस OOM को use करते हुए what happens is that whenever Android feels that they are out of system space, they will kill a process. अब कौन सा process kill होगा
and when it will get killed, this is a policy defined by the end user. Another feature that aims at memory reduction and battery conservation per se is the power management. अब Linux kernel comes with its own power management features, लेकिन उसके ऊपर Android added another aggressive set of power management features that simply says that if you are not using anything, it should be shut down. So anything that is working on the background has a very high probability that it will be killed. इसकी हमने examples देखी थी कि normally when you are using your phone as let's say media player, जिसमें आप सिर्फ ऑडियो सुन रहे हैं, तो you are not interacting with the phone itself. Pretty soon the phone screen will shut it off. Processor चलता रहेगा because it is playing the audio, लेकिन आपकी screen जो है वो shut down हो जाएगी. इसकी कुछ implications भी हैं. There are certain applications where you are not interacting with the phone that frequently, लेकिन still you would need them to stay on. उसके लिए Android provides some additional constructs such as wake up locks, so that if you need some resources to stay on, you acquire a wake up lock on them, and until you have the wake up lock on them, it will stay awake. इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है वेक अप लॉक के साथ कि इसको बहुत एहतियात के साथ यूज़ करना चाहिए, बिकॉज देन इफ़ यू टेक अप अ वेक अप लॉक एंड यू फॉरगेट टू रिलीज इट, आपकी बैटरी बहुत जल्दी कंज्यूम होगी. So these are the few things that Android bring into the scene in addition to many open source projects which it has opted. हमने कहा था कि Android का पैकेज जो है, जस्ट लाइक अगर आप C++ में प्रोग्राम करते हैं तो यू हैव एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe जो कि आप रन करते हैं. अगर आपने Symbian में प्रोग्रामिंग करें तो यू विल हैव अ sys पैकेज विच यू विल यूज़ एज एन एग्जीक्यूटेबल. जावा में आप प्रोग्राम करें तो यू विल हैव अ jar पैकेज जो कि आपके एग्जीक्यूट होगा ऑन योर मशीन. इसी तरीके से फॉर एंड्रॉयड वी हैव एन APK फाइल. An APK file is the package that is result of the compilation process. अब ये APK जो आपका पैकेज है, what does it contains? First of all, it contains the DEX code of your program. DEX code is the one that will execute on the Dalvik virtual machine. That is the core of your program. That is your actually program that will be running on the machine itself. इसके अलावा you will have the resources like the icons you might have used or the audio files that you have used in your program that are also packaged inside this APK file. इसके अलावा we have some XML files to instruct the environment how to deal with this program. For example, we have an XML file called android.xml or android manifest.xml. अब ये manifest file क्या करती है? Manifest file में we have all the permissions that the application will require to run. आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने GPS कोऑर्डिनेट फाइंड करने का एक प्रोग्राम लिखा है जो कि डायरेक्टली किसी सैटेलाइट से आपके GPS कोऑर्डिनेट्स फाइंड करता है और उसके बाद देन इट ट्राइज टू प्लान द रूट फॉर यू, या आपकी सिंपली आपकी लोकेशन जो है वो प्लॉट कर देता है गूगल मैप्स पर. अब यहाँ पर आप दो फंक्शनैलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं. यू आर यूजिंग अ GPS कोऑर्डिनेट्स फाइंडर. आप सैटेलाइट को प्रोब करते हैं और वहाँ से आप अपने GPS कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं. प्लस you are using internet to fetch the maps data. So you need two permissions, GPS and internet, and both will be part of your android manifest.xml. जब भी आप ये application install करेंगे अपने फ़ोन पर, तो it will ask you कि okay, this application has requested access to these resources. That will include GPS, that will include internet, या और भी कोई resources जो आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होंगे. And then only if the user agrees to let the application use those resources, the application will install. This is a check to make sure that application is not using something without the knowledge of the user, because there is a tendency of things getting misused. So in order to avoid that situation, the user is
told beforehand, उसको पहले से ही बता दिया जाता है कि these are the resources this application will use. So if for example user doesn't want to use internet because internet on a GSM phone या जो आपका टेलीकॉम ऑपरेटर के थ्रू अगर आप इंटरनेट यूज़ करें तो दैट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन. सो अगर जो एंड यूज़र है वो नहीं चाहता कि आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इंटरनेट को यूज़ करे, तो देन इट कैन डिक्लाइन द इंस्टॉलेशन एट दैट. सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ एन APK फाइल. आपकी instructions on how to run the code, what are the permissions it would require, that goes inside the Android manifest.xml file. आपका process itself dex file के format में जो कि डालविक virtual machine पे चलेगा. Then your compiled and non-compiled resources, for example the icons or audio files or any other resources that you would need in order to run the program. So all this become part of the APK file, and this is the APK file that will actually go on Android phone and run it. Whenever you download something from Android market या अगर आपको कोई Android का program मिलेगा, so if you see the extension it would be .apk, and this is the program, this is the file that will execute on your phone. Now this is a package that contains everything. This is not exactly an object code per se. डेक्स को जिस तरह हमने कहा कि जब भी ये जो इंटरमीडिएट कोड होता है जो कि वर्चुअल मशीन पे चलता है, दिस इज यूजुअली कॉल्ड अ बाइट कोड. बाइट कोड को हम यूजिंग वेरियस मेथडोलॉजी सच एज जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन हम इसको नेटिव कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं टू गेन सम स्पीड एफिशिएंसी. नाउ देयर इज अनदर few terms that you are probably familiar with it by now, and I'll just reiterate so that we are on the same page. One is process, other is activity, and the third is service. इन तीनों में क्या फ़र्क है? What is a process, what is an activity, and what is a service? A process is everything that runs inside Android run inside a process. हर एप्लीकेशन जो Android पे रन करेगी वो अपने प्रोसेस के अंदर रन करेगी. And this is what Android promotes as the security model, that every application will have its own process, or nobody or no other application will be allowed to interact with process. आप उसको इस तरीके से देख लें that you have a secluded space, you have a closed space for your own self. आपके लिए, आपके अपने एप्लीकेशन के लिए, या आप if you think of terms of individuals, तो एक इंडिविजुअल है जिसके पास एक पूरा रूम है जिसमें उसकी यूज़ की तमाम चीज़ें पड़ी हैं. सिमिलर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस एंड एप्लीकेशन. हर प्रोसेस जो है वो एक एप्लीकेशन के लिए डेडिकेटेड है. इन अदर वर्ड्स, एक एप्लीकेशन एक अपने प्रोसेस में चलेगी, वो एक सेक्लूडेड स्पेस है जिसके अंदर वट एवर द एप्लीकेशंस में रिक्वायर वुड बी देयर, एंड नो अदर एप्लीकेशन इज़ अलाउड टू इंटरेक्ट विद दैट प्रोसेस. ये डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी मॉडल है एंड्रॉयड का. इन एडिशन टू प्रोसेस, every process has assigned a user ID. So there are two distinctive identifications associated with any process. One is process ID, other is user ID. और ये वही मॉडल है जो कि हमने लिनक्स में देखा था. अगर आपको याद हो तो लिनक्स में जब हमने लिनक्स कर्नल की बात की थी तो वी सेड दैट फ्रॉम लिनक्स कर्नल वी इनहेरिटेड दिस सिक्योरिटी मॉडल. आप अगर लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम में इफ़ यू सी द डिटेल ऑफ ऑल द रनिंग प्रोसेसेस, यू विल सी दीज टू कॉलम्स. एक तो नाम होगा, एंड देन द अदर टू कॉलम्स वुड बी द PID, दैट इज़ द प्रोसेस ID, and then the UID, that is the user ID. PID defines which process it is running, and then user ID would be that which user owns this process. This is an additional measure because in some cases there can be instances कि एक ही process दो users ने launch किया हुआ. अब वो process जो है उसकी PID शायद same होगी, और या let's say for example आप एक प्रोसेस के साथ दो यूजर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो देन
in these cases you might get this idea that okay, the PID of these processes and then the user ID of these processes, these two make up a robust security model. And same is the thing with the Android. Android में भी हम यही दोनों चीजें यूज करते हैं to enforce security. अब process usually have, or an application usually have a UI जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है, जिसके साथ यूजर which user uses to accomplish certain thing. आपका जो आपकी एप्लीकेशन है, it has an objective और यूजर interact with this application to achieve this objective. तो एक UI का component more or less is always part of that application. But in some cases these application don't have a UI. उस केसेस में क्या होता है, they only provide you certain services through functional calls या APIs जिनको हम कहते हैं. So we call up an API और जब हम उस API को कॉल करते हैं तो we get our required result. इसकी हमने अगर आपको बैक ट्रैक थोड़ा सा करें तो सिम्बियन में हमने ये एग्जांपल ली थी कि दैट कॉन्टैक्ट मैनेजर एंड कॉन्टैक्ट सर्विसेज आर टू प्रोसेसेस और टू एप्लीकेशंस हैं. एक एप्लीकेशन है फुल फ्लेज, जब भी आप अपने कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं तो इट विल शो यू द लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, उनका नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस और जो भी आपने इंफॉर्मेशन उसकी सेव की होगी वो वहाँ पर होगी. एंड सेकेंड इज a service, that is you can call it up programmatically and you can probe it about, just like you can probe a database about, you can throw it a query and it will return you some results. So this is an example where of a case where an application is acting both as an application itself and as a service. तो Android में भी हमारे पास application भी हैं जिनका UI component है, and then we have services too. And all the services does is that it provides you certain functionalities through programmatic calls or APIs. Then what is left is an activity. एक activity क्या होती है? Everything what we do in Android is an activity. इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं. Then what is a task? A task is composed of multiple activities. अब task की मैं आपको एग्जांपल दूं. For example, taking a picture is a task. अब इसमें एक्टिविटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हुई? इसमें एक्टिविटीज ये हैं कि आपने कैमरे को लॉन्च किया, you enable or disable the flashlight, you enable or disable red light reduction, you took a picture, you browsed folders जहाँ पे आपने उनको सेव करना है, then you convert it into a format, appropriate format, for example JPEG or PNG, whatever you would like, and then you save the picture. All of these are activities, and these activities come together to form a task or operation. अब ये जो task है, अब कैमरा के एग्जांपल में तो all of these activities are bundled within one single package, for example. तमाम एक्टिविटीज एक ही पैकेज में बंडल हो गई. द बंडल इज कॉल्ड कैमरा और आपने उसको यूटिलाइज कर दिया. बट दिस माइट नॉट बी द केस. देयर कैन बी केसेस वेयर द एक्टिविटीज यू वांट टू परफॉर्म बिलोंग्स टू डिफरेंट पैकेजेस और डिफरेंट processes, because every application run inside its own process और हर प्रोसेस के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज रन हो रही होंगी. फॉर एग्जांपल कैमरा की एक्टिविटी जब लॉन्च हुई या कैमरा की जब पैकेज एप्लीकेशन लॉन्च हुई तो उसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज रन हो रही हैं और वो तमाम एक प्रोसेस को बिलोंग करती हैं. तो यूनिकनेस ऑफ अ टास्क इज दैट इट कैन यूज एक्टिविटीज फ्रॉम डिफरेंट पैकेजेस. It can use activities from different processes. उस पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो सिर्फ जिस प्रोसेस के अंदर रन कर रही है उसी की एक्टिविटीज़ यूज़ करेगी, लेकिन वो दूसरी प्रोसेसेस की एक्टिविटीज़ भी यूज़ कर सकती है. और इसके लिए हम जो
मैनेजर यूज़ करते हैं विच कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड एक्टिविटी मैनेजर। इसके साथ एक रेलेवेंट मैनेजर जो है दैट इज़ कॉल्ड पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर क्या करता है कि वो तमाम एप्लीकेशंस जो कि फ़ोन पे इंस्टॉल हुई हैं उनका ट्रैक रखता है। एक्टिविटी मैनेजर क्या करता है कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि फ़ोन पे अवेलेबल हैं उनका ट्रैक रखता है, सो दैट व्हेन एवर समबडी नीड्स इट कैन डायरेक्ट इट अकॉर्डिंगली कि ये एक्टिविटी या ये फंक्शनैलिटी किसके पास। देन हाउ डू दीज प्रोसेसेस इंटरेक्ट, बिकॉज रिमेंबर हमने कहा था कि जी हर प्रोसेस जो है वो हर एप्लीकेशन अपने प्रोसेस में रन हो रही होगी, एंड सेम इज़ ट्रू फॉर एक्टिविटी। अगर आपकी एप्लीकेशन में 10 एक्टिविटीज़ हैं तो 10 की 10 एक्टिविटीज़ उसी प्रोसेस के अंदर चलेंगी जिसके अंदर वो एप्लीकेशन चल रही है। दे कांट एग्जीक्यूट आउटसाइड ऑफ दैट प्रोसेस। तो हमने कहा कि ये जी सिक्योरिटी मॉडल है, दिस इज़ वेरी एसेंशियल टू मेंटेन इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हाउ वुड, एंड मैं आपको सिनेरियो देता हूँ कि आई स्टार्टेड अप एन ईमेल प्रोग्राम। मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ जो ईमेल करेगा, एंड आई विल स्टार्ट विद माई कॉन्टैक्ट्स। मैं कॉन्टैक्ट्स में से ब्राउज करूँगा, देन आई विल फाइंड द पर्सन जिसको मैंने ईमेल करनी है, आई विल एक्सट्रैक्ट हिज ईमेल, आई विल स्टार्ट द ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट में मैं अपनी ईमेल कंपोज करूँगा, उसके साथ मैंने अटैचमेंट अगर कोई फाइल करनी है, कोई पिक्चर करनी है, आई विल डू दैट। अगर मेरे पास वो पिक्चर अवेलेबल नहीं है तो देन आई विल टेक द पिक्चर, अटैच दैट एंड देन सेंड इट। अब ये जो ऑपरेशन है, ये जो टास्क है, इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्रोग्राम्स। आई स्टार्टेड विद द कॉन्टैक्ट मैनेजर, देन आई लॉन्च्ड अप एन ईमेल क्लाइंट, फिर मैं फाइल ब्राउजिंग में चला गया, देन आई टुक अ पिक्चर एंड देन आई डिड एन अटैचमेंट एंड देन आई डिड अ सेंड। So these are all activities belonging to various different applications. और हर application जो अपने process में चल रही है, how would I interact with them? How would I communicate with them? इसके लिए हम एक special construct use करते हैं which is called inter-process communication, IPC calls. IPC calls help us pass or communicate data between different processes, या communicate different instructions between different processes. In Android, we have a specialized inter-process communication mechanism. We call it binder. और इन सर्विसेज का कौन ट्रैक रखता है? एक्टिविटीज़ का ट्रैक रखने के लिए हमारे पास एक्टिविटी मैनेजर है। पैकेज जो भी इंस्टॉल हुए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, उनका ट्रैक रखने के लिए हमारे पास पैकेज मैनेजर है। सर्विसेज कौन सी हमारे सिस्टम पे अवेलेबल हैं, उनका ट्रैक रखने के लिए हमारे पास जो मैकेनिज्म है दैट इज़ कॉल्ड सर्विस मैनेजर। जब भी हमारी एप्लीकेशन को किसी सर्विस की ज़रूरत होती है तो वी गो टू दिस सर्विस मैनेजर, इट लुक्स इट अप द सर्विस फॉर अस, एंड देन यूजिंग दैट सर्विस मैनेजर वी कम्युनिकेट विद द अदर साइड ऑफ द प्रोसीजर, या हम उस सर्विस के साथ इंटरेक्ट करते हैं यूजिंग दिस सर्विस मैनेजर। So this is the difference between a process, a package, and an activity. इसके बाद we went on and we said कि ज़ायगॉट, जब हमने डेल्विक की बात की तो हमने कहा डेल्विक जो है ना उसके साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का प्रोसीजर अटैच्ड है, दैट इज़ कॉल्ड ज़ायगॉट। अब ज़ायगॉट का काम क्या है? मेजॉरिटी ऑफ हमारी जो एफिशिएंसी है वो ज़ायगॉट की तरफ से आती है। हमारी मेमोरी एफिशिएंसी भी ज़ायगॉट से हमें इनहेरिट होती है, और सम ऑफ आर स्पीड एफिशिएंसी आल्सो कम्स फ्रॉम ज़ायगॉट। अब ये ज़ायगॉट क्या प्रोसेस है? ज़ायगॉट इज़ अ प्रोसेस विच प्री वार्म्स अप अ वर्चुअल मशीन फॉर यू। उसमें आपकी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, उसमें आपकी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं, सो दैट व्हेन एवर somebody comes and says that okay I am going to launch a new process, एक ज़ायगॉट का प्रोसेस फोर्क होता है और आपको मिल जाता है कि ओके दिस इज़ अ प्री बिल्ट एवरीथिंग। ये उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है कि जब भी अगर आप कोई IDE यूज़ करें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज़ करें, तो आप जावा यूज़ कर लें या विजुअल सी यूज़ कर लें, एक्लिप्स यूज़ कर लें, तो आप उन्हें जब बताते हैं कि ओके आई एम गोइंग टू राइट अ जावा प्रोग्राम या मैं सी का प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ,
तो आपको वो कुछ स्टेप्स से लेके चलता है और एट द एंड आपको एक वो फ्रेमवर्क बना के दे देता है. In Java, it would have some pre-written classes for you. In Visual C, maybe it's using some MFC, कुछ libraries उसमें already वो include कर देता है. Assuming that okay, you are writing a Java program or C program, तो ये वो libraries हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, या ये वो structure है जिसकी आपको definitely ज़रूरत पड़ेगी, तो it pre-writes it for you. और आपका काम ये होता है कि आप उसमें सिर्फ जो है अपनी logic लिखते हैं and it would be a ready-made program. The same logic goes for the Dalvik virtual machine and the Zygote. Zygote prepares everything for you. It brings together all the libraries for you. It brings together all the resources for you. अब जब भी Zygote को inform किया जाता है कि एक नया process launch होने लगा है, तो what it does is that it forks it up. We call it Dalvik virtual machine, and it hands it over to the process. अब उस प्रोसेस के अंदर वो डाल्विक मशीन चलती है जो कि फोक हुई होती है और उसके ऊपर हमारी तमाम एप्लीकेशंस रन करती हैं. बूटअप प्रोसेस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. आप विंडोज़ में देखेंगे तो आपको एक फिक्स्ड सेट ऑफ सीक्वेंस मिलेगा जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करता है, जिसको हम बूटअप का नाम देते हैं. लिनक्स में भी हमारे पास एक फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ बूटअप. एंड एंड्रॉयड, बिकॉज इट्स बेसिकली एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक बूटअप का सीक्वेंस फॉलो करता है. इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग हमारे पास स्टेप है इन दिस होल बूटअप प्रोसेस इज द इनिट और इनिशियलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें हम एक फाइल पढ़ते हैं init rc, जिसके अंदर हमारी मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आर देयर टू इंस्ट्रक्ट के जी सिस्टम को इनिशियलाइज किस तरीके से करना है, फाइल पॉइंट्स को माउंट किस तरीके से करना है, व्हाट आर द पॉलिसीज टू किल अ प्रोसेस, एंड ऑल दोज थिंग्स दैट गोज इनसाइड द इनिशियलाइजेशन प्रोसीजर. सो when boot up procedure starts in Android, we have a bootloader which loads up kernel, and kernel then initializes the initialization procedure. अब initialization procedure में हम सबसे पहले जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने daemons लोड करते हैं. हमारे daemons Android के प्लेटफॉर्म में कौन कौन से हैं? We have number of daemons like volume daemon, VOLD. We have radio daemon जो कि हमारी कम्युनिकेशन, जो हमारी फ़ोन की कम्युनिकेशन हो उसको हैंडल करता है, रेडियो डेमन. वी हैव नेट डेमन जो कि हमारी नेटवर्क की एक्टिविटी को हैंडल करता है. सो वी हैव नंबर ऑफ डेमन्स दैट आर इनिशियलाइज्ड और दैट आर ब्रॉट अप इन द इनिट प्रोसीजर. उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप वी डू इज दैट वी ब्रिंग अप अ zygote प्रोसेस विच इज़ देन रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग एनी प्रोसेस जो कि लॉन्च होता है. लेकिन बिटवीन launching zygote and going ultimately to launching applications or process, उसके दरमियान और बहुत से steps होते हैं which are essential for the proper functioning of Android operating system. वो क्या है? सबसे पहले we bring up a runtime. अब runtime का क्या होता है? Runtime brings up service manager for us. Service manager, as we said, is responsible for handling all the service related calls. जब भी किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी प्रोसेस को किसी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो it probes the service manager to find out where exactly the service are and then how can it interact with it. तो runtime का काम क्या होता है? That it brings up a service manager which registers with the system that okay, I am the one who will handle all the service related calls. Once we have a service manager up, then the zygote, what it will do is that it will bring up the native services. Native services में हमारे पास क्या कौन से components आ जाते हैं? Native services में हमारे पास audio flinger आ जाता है, native services में हमारे पास surface flinger आ जाता है. ये दोनों जो services हैं that are brought up by the zygote process itself. उसके बाद we bring up all the managed services like content manager, like activity manager. These services are brought up and in conjunction with that, उसके साथ साथ ही we bring up another service manager जिसको हम कहते हैं managed service. अगर आप स्क्रीन पे देखो तो आपकी जो
managed services manager है, that is shown in blue, and whereas our service manager in the lower layer is shown in a different color. Why is that? This is because the components that are written in Java, that are written in higher level language, are registering with a proxy Java object, जो कि in turn जाके उन्हीं services को access करता है. लेकिन for the ease of the programmer, we have written something at the very higher level. जबकि निचले लेवल की सर्विसेज जो हैं, फॉर एग्जांपल ऑडियो फ्लिंगर है, फॉर एग्जांपल सर्विस फ्लिंगर है, इट रजिस्टर्स विद द नेटिव सर्विस मैनेजर. So we have two service managers running, one at the higher level, we call it proxy object or proxy service manager, और एक हमारा जो सर्विस मैनेजर है वो लोअर लेवल पे चल रहा है, जिसको जो कि हमारी नेटिव सर्विसेज को मैनेज करता है. अल्टीमेटली जैसे कि हमने पहले भी देखा कि हमारा फ्लो ऊपर से अल्टीमेटली व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेयर और एप्लीकेशन लेयर, traversing all application and then application framework, we ultimately you end up using the services at the bottom layers, like हम libraries, we end up using libraries written C and C++. लेकिन for the ease of writing code, for the ease of the developer, we have provided this distinction कि आप upper level में you write programs in Java, और उन Java के programs अगर वो कोई resources use करते हैं तो उसके लिए हमने एक proxy service manager दिया हुआ है which handle all these calls that are originating from those Java programs. That means your application, the core applications या वो applications जो किसी third party developer ने लिखी हैं, and your application framework, because if you remember your this managed libraries or application frameworks, that is also written in Java itself. So these two layers end up this proxy Java object और proxy service manager, जबकि वो services जो कि native code में लिखी गई हैं और वो resources जो कि native code use कर रहा है, that is provided through the service manager जो कि native service manager है and written in the lower layer. At the screen I am showing you कि जब ये हमारा सारे process चल जाते हैं, हमारी ये सारी libraries load हो जाती हैं, so this is how the stack of the operating system or the stack of the phone looks like. On the screen you will see कि हमारे पास सबसे पहले एक init का procedure है. We have a box which has init. उसके बाद next box में हमारे पास next step है, that is when we loaded all the daemons. तो ये वो वाला box है जिसमें हमारे पास तमाम daemons load हुए हैं. उसके बाद next box में हमारे पास run time है. This is the runtime that is responsible for bringing up the service manager. Then we have Zygote, and then we have the audio flingers, surface flingers, and then all the managed service like content manager and activity managers and so on. So this is how the stack of operating systems looks like on the conceptually or logically. This is how the sequence of event goes, that we start with the init and then we end up at point where we have loaded all the managed services. Now we are ready to bring up the home screen. अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वो एक पूरा प्रोसीजर चलता है and then we have a home screen where user is allowed to perform any operation. तो जब ये तमाम सर्विसेज लोड हो जाती हैं, जब ये तमाम लाइब्रेरीज लोड हो जाती हैं, जब हमारे सर्विस मैनेजर अप हो जाते हैं, तो देन वी अलाउ द यूज़र टू परफॉर्म एक्शंस. और वो हम किस तरीके से करते हैं, दैट वी ब्रिंग अप द होम स्क्रीन. अ पॉइंट टू नोट हियर इज कि होम स्क्रीन भी एक एप्लीकेशन है, जस्ट लाइक एनी अदर एप्लीकेशन ऑन एंड्रॉयड फ़ोन, चाहे वो कोर एप्लीकेशन हो या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, जस्ट लाइक एनी एप्लीकेशन इन एंड्रॉयड फ़ोन, home is yet another application. There is nothing distinctive about home screen. Home screen is just a UI, a screen that lets user interact with the phone. जब आपके पास home screen आ जाती है, then you are free to interact with the phone, with your applications. ये उसी तरीके से है कि आप
विंडोज़ जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करते हैं तो इट गोज थ्रू सम स्टेप्स एंड अल्टीमेटली इट विल टेक यू टू द स्टार्ट मेन्यू, या आपके डेस्कटॉप पे ले जाता है जहाँ से आप एप्लीकेशंस लोड कर सकते हैं, जहाँ से यू स्टार्ट परफॉर्मिंग समथिंग यूजफुल. सिमिलरली एंड्रॉयड में दिस स्टार्ट स्क्रीन और दिस डेस्कटॉप इज कॉल्ड home screen, and just like any other application in Android, home screen is also an application. और जब हम कहते हैं कि ये एक एप्लीकेशन है तो then it should run inside its own process along with Dalvik virtual machine, because any application in Android will run it. पहली बात तो ये है कि वो अपने प्रोसेस में रन करेगी, बिकॉज दिस इज द सिक्योरिटी मॉडल ऑफ एंड्रॉयड, कि जो भी एप्लीकेशन लॉन्च होगी, जो भी एप्लीकेशन रन होगी, वो अपने प्रोसेस में रन होगी. तो दैट इज फर्स्ट. एंड सेकंड, तमाम एप्लीकेशंस जो हैं वो वर्चुअल मशीन्स पे रन होगी. सो एवरी एंड वर्चुअल मशीन इन एंड्रॉयड इज कॉल्ड डाल्विक वर्चुअल मशीन. तो जब भी आप देखेंगे कि आपने एक प्रोसेस लोड किया है या आपने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो उसके अगेंस्ट एक नई वर्चुअल मशीन स्पॉन होगी, जो कि ज़ायगॉट का काम है. ज़ायगॉट को जब भी पता चलता है कि एक नई एप्लीकेशन लॉन्च होने लगी है, तो इट फोर्क्स इटसेल्फ. एक वो स्केलेटन सा उसने बनाया हुआ है जिसमें तमाम नेसेसरी लाइब्रेरीज आर देयर, तमाम नेसेसरी रिसोर्सेज आर देयर, और जब भी उसको पता चलता है कि एक नया प्रोसेस लॉन्च होने लगा है, इट मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ, और वी कॉल इट डाल्विक वर्चुअल मशीन. एंड ये होम स्क्रीन क्योंकि इट्स येट अनदर एप्लीकेशन, तो जब हम इसको भी लॉन्च करेंगे तो ये एक डाल्विक वर्चुअल मशीन का इंस्टेंस लॉन्च होगा, और उसके ऊपर होम स्क्रीन जो है या होम आपका जो होम कंटेंट्स है वो शो होंगे. इसको अगर हम तरफ से आगे लेके चलें तो लेट्स से आपने कंटेंट्स लॉन्च किए, आपने अपना कंटेंट्स देखने, कॉन्टेक्ट्स देखने, सॉरी, दैट व्हाट आर द नंबर्स आर देयर इन योर फोन, या आपने एसएमएस की एप्लीकेशन लॉन्च करनी है. तो अगेन एसएमएस, मैसेजिंग सर्विसेज या कॉन्टैक्ट सर्विसेज, दे आर अगेन एप्लीकेशंस, ऑल्दो वी डिस्टिंक्ट देम, वी से कि ये कोर एप्लीकेशंस है, बिकॉज कोर एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए हैं बिकॉज दीज आर बिल्ट इनसाइड द फोन. जब आपके पास फ़ोन आया तो दीज आर पार्ट ऑफ द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. जो भी आपका वेंडर था उसने इसको बंडल किया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो वी कॉल इट कोर सर्विसेज, कोर एप्लीकेशन. लेकिन देयर इज नथिंग डिस्टिंक्टिव बिटवीन दीज एप्लीकेशंस एंड एनी एप्लीकेशन दैट यू माई राइट. आप भी उन्हीं एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए वो अपनी एप्लीकेशन लिखोगे जिन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए ये कोर एप्लीकेशंस लिखी गई हैं. एंड अगेन आपकी एप्लीकेशन भी डाल्विक वर्चुअल मशीन के को यूज़ करेगी, एंड देन इट विल रन इनसाइड इट्स ओन प्रोसेस. एंड same case would be true for messaging services, same case would be true for contact services, same case would be true for home screen, same case is true for any game that you might write. All of them will use Dalvik virtual machine and will run inside its own process. अगर आप स्क्रीन पे देखो तो now I am showing you logically that this is how the sequence of events is, that you have all the processes जो कि libraries जो कि पहले लोड हुई, और उसके बाद now I have a home screen, और home screen के साथ I have a Dalvik virtual machine. Now I have one component deliberately missing here. एक component मैंने यहाँ पे जानबूझ के छोड़ दिया, और I would like you to tell me which one is it. हमने जब एंड्रॉयड की बात की थी शुरू में तो हमने कहा था, और अभी हम कर्नल को ही डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा था कि एक कंपोनेंट ऐसा है which is essential for any Unix और Linux based system. कोई भी Unix based या Linux based system उसके बगैर फंक्शन नहीं कर सकता, because this component provide the basic functionality for this operating system. या इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी प्रोग्राम हुए होते हैं उनके लिए जो बेसिक सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज, दिस कम फ्रॉम दिस कंपोनेंट. और कोई भी यूनिक्स और लिनक्स सिस्टम इसके बगैर फंक्शन नहीं कर सकता. एंड वी फर्दर सेड कि हमने इसको निकाल दिया कर्नल के अंदर से, एंड देन वी सेड दैट वी मेड इट कस्टम. कैन यू नेम इट? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट libc.
the library which provides you the basic routines, the basic functionalities for writing a program. So whenever you launch a program, जब भी वो आपका प्रोसेस का एक बॉक्स बनेगा, तो इन एडिशन टू डाल्विक वर्चुअल मशीन, क्योंकि आपको ज़ायगॉट एक कॉपी बना के हैंड ओवर करेगा, देयर इज़ ऑल्सो अ कॉपी ऑफ libc, बिकॉज libc इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर रनिंग योर प्रोग्राम. तो अगर आप स्क्रीन पे देखो तो आई एम शोइंग यू कि पहले तो हम वो तमाम प्रोसेस हमने फॉलो किया. हमारे पास डेमन्स हैं, हमारे पास मैनेज सर्विसेज हैं, हमारे पास रन टाइम है. एंड देन आई एम शोइंग यू कि जब भी कोई नई एप्लीकेशन लॉन्च होती है, सच एज योर कॉन्टैक्ट स्क्रीन या आपकी होम स्क्रीन, तो आपके पास इन एडिशन टू डाल्विक वर्चुअल मशीन यू ऑल्सो हैव अ कॉपी ऑफ libc. एंड दैट्स वाई दीज टू has to be very memory efficient, because जब भी कोई नया process launch होगा, a copy of these two will get launched. And if you are not careful, if operating system designer is not very careful about the space they are taking up, then very soon you will be incurring this problem that you will be out of memory. That's why Dalvik virtual machine and libc is deliberately kept very small. और इसमें हमने देखा कि libc, in effort to keep it very small, we have taken out some very essential functionalities like exception handling, जो कि हम नॉर्म लेते हैं glibc में. in libc we took it out. इस तरह की काफ़ी चीज़ें we took it out so that we make it space efficient, so to make it memory efficient, ताकि वो जब हर प्रोग्राम के साथ लोड हो तो it doesn't start taking up much of our space. And this is how our load up sequence looks like, starting from init or starting from bootloaders, let's say. उसके बाद हमारा कर्नल लोड हुआ, कर्नल के बाद हमारी init और इनिशियलाइजेशन प्रोसीजर्स आए. इनिशियलाइजेशन प्रोसीजर्स के बाद हमने ये तमाम लाइब्रेरीज, ये तमाम मैनेज सर्विसेज लोड की. इसलिए हम कहते हैं कि these operating system libraries take up about 30 to 40 MB of your space in Android. ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आपको याद हो कि हमने इसकी बाइफिकेशन की थी, इसकी डिवीजन की थी कि when we have 64K available, so how does it get consumed? These are the services, these are the libraries that consume it. But the end goal is to make developers' life easy. इसके अलावा जब हमारी ये जो बूटअप सीक्वेंस ख़त्म हो जाता है, जब हमारा ये इनिशियलाइजेशन प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है, तो इसके बाद भी वी एड अप सम मोर लाइब्रेरीज ऑन द टॉप ऑफ इट इन फॉर्म ऑफ डाल्विक वर्चुअल मशीन या इन फॉर्म ऑफ ज़ायगॉट, जिसके पास ऑलरेडी बिल्ट अप लाइब्रेरीज होती हैं जो कि प्रोग्राम्स यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ इन नटशेल हाउ an Android phone boots and how you will reach to a point where you start interacting with any application. And when you launch an application, these are the two components, that is the Dalvik virtual machine and the libc, that plays an important role for any process when it is launched. अब next चीज़ जो we will think about or we will discuss is कि ठीक है, ये तो हो गई हमारा बूटअप सीक्वेंस, हमारा फ़ोन अप लोड हुआ और उसने ये तमाम लाइब्रेरीज लोड कर दी. अब ये लाइब्रेरीज आपस में इंटरेक्ट किस तरीके से करती हैं? हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं वो ऊपर वाली लेयर में है. ऊपर वाली लेयर जब एब्स्ट्रैक्टली व्हेन आई से द अपर लेयर्स, आई वुड मीन कि वो लाइब्रेरीज या वो लेयर्स जो कि जावा में लिखी गई हैं. दैट इंक्लूड्स आवर एप्लीकेशंस, दैट इंक्लूड्स आवर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क. These are the two layers that are written in Java, in addition to runtime libraries, which is part of our runtime. So these are written in Java, and then we have the native code. हमारे पास libraries है, हमारे पास SQLite है, हमारे पास media framework है, हमारे पास we have routines or we have libraries to handle web, and all those is written in C++. और उसके बाद नीचे कर्नल है जो कि अगेन C या C++ में लिखा गया. How would all these components come together and act as one?
अगर मैं एप्लीकेशन लेयर से कोई चीज़ लॉन्च करता हूँ, एप्लीकेशन लेयर से अगर मैं कोई चीज़, लेट्स से इफ़ आई ट्राई टू फाइंड माई GPS कोऑर्डिनेट्स, या इफ़ आई ट्राई टू प्ले एन ऑडियो, हाउ ऑल दीज कंपोनेंट्स विल कम टुगेदर, या कैसे मेरी the flow of the instructions, how would that happen? So there are three scenarios, three very common scenarios actually, in which this flow occurs. इस flow के तीन बहुत common scenario, और the most common is that I am an application and I am trying to access a native library. अब native library में मेरे पास I might be trying to access native hardware. That is also a possibility. तो ये किस तरीके से ये flow चलेगा? So I started from very top, and then my application made a call to something in application framework. यही सीक्वेंस है ना कि हमारे पास सबसे पहले जब हमने ये पूरा स्टैक डिस्क्राइब किया था, तो हमने कहा था कि हम एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे, और एप्लीकेशन वुड यूज द फैसिलिटीज दैट आर रिटन इन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क. आई हैव एन एप्लीकेशन सिटिंग ऑन द टॉप एंड आई विल बी यूजिंग समथिंग दैट इज रिटन इन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क. अब वो क्या चीज होगी? व्हाट वुड बी दैट कंपोनेंट दैट इज रिटन इन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क दैट आई विल यूज? अभी हम एब्स्ट्रैक्टली बात करें तो आई कीप इट एब्स्ट्रैक्ट एंड वी विल कॉल इट द रन टाइम सर्विस. दिस इज द सर्विस दैट माय एप्लीकेशन विल कॉल इन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क. अब इसको यूज करने के लिए व्हाट विल आई यूज? हाउ वुड आई कम्युनिकेट विद दिस सर्विस? आई हैव एप्लीकेशन रिटन इन जावा, आई हैव एप्लीकेशन फ्रेमवर्क रिटन इन जावा, बट दीज आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस living in two different layers. So my IPC or binder IPC call will come into play, and I will use the binder IPC calls to call a runtime service. Runtime service in turn will call up some library, because application framework के नीचे हमारे पास runtime libraries या application framework के नीचे we have a layer that is called libraries, जहाँ पे हमारे पास native libraries लिखी होती हैं. So our framework will start calling something in libraries. What would be that? That would be our native service binding. And then the native service binding will call up hardware abstraction layer, जो कि फिर dynamically load करेगी उस ड्राइवर को या उस लाइब्रेरी को जो कि हमने यूज करनी, और वो ड्राइवर्स या वो लाइब्रेरी कैन देन इन टर्न टॉक विद द कर्नल. तो सीक्वेंस ये बना कि मेरी एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन ने आईपीसी के थ्रू कॉल किया रन टाइम सर्विस को. रन टाइम सर्विस ने देन यूज्ड द सर्विस बाइंडिंग और नेम सर्विस बाइंडिंग एंड डायनेमिकली एंड देन टॉक टू द हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जिसने डायनेमिकली लोड किया लाइब्रेरी को, एंड दैट लाइब्रेरी कैन इन टर्न विद आल्सो टॉक विद माय कर्नल. अब यहाँ पे एक जगह पे हमने बड़ा मेजर थ्रेशोल्ड क्रॉस किया. वो जो हम कहते हैं ना कि वॉइस का थ्रेशोल्ड होता है या साउंड का थ्रेशोल्ड होता है, जिसको हम क्रॉस करें तो देयर इज अ लाउड बैंग, या देयर इज, यू फील लाइक देयर इज समथिंग हैपेंड. इस पूरे सीक्वेंस में भी हमने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, एंड दैट थ्रेशोल्ड इज कि जब हम वो प्रोग्राम जो जावा में लिखे गए थे उनसे जब हम नेटिव सर्विसेज में आए, या इस एब्स्ट्रैक्ट लेयर में जब हमने रन टाइम सर्विस से हमने जंप किया इनटू नेटिव सर्विस बाइंडिंग. ये जंप हम किस तरीके से करते हैं? टू मेक दिस जंप, और या जावा से नेटिव, जावा की डोमेन से नेटिव की डोमेन में आने के लिए वी यूज एन इंटरफेस दैट इज कॉल्ड जावा नेटिव इंटरफेस और JNI. दिस इज द इंटरफेस दैट हेल्प अस कॉल नेटिव कोड. अब नेटिव कोड को कॉल करने के देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजन. नेटिव कोड आप इसलिए भी कॉल कर सकते हो बिकॉज यू हैव थिंग्स रिटन इन C++, आपके पास लेगेसी कोड है एंड यू डोंट वांट टू चेंज ऑल ऑफ इट इन जावा इटसेल्फ. So what you do is that to keep it in the native code, and you will use the JNI to call those. You can also use native code to
अवॉइड एनी बॉटलनेक्स। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो आप हार्डवेयर के क्लोज होते जा रहे हैं, योर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, योर स्पीड अप विल बी बेटर। असेंबली में आप प्रोग्राम लिखेंगे तो इट वुड बी मच स्पीडियर देन C++। आपका C++ का प्रोग्राम विल बी फास्टर एज कंपेयर टू जावा। तो आप जितनी ऊपर की लेयर में, जितनी एब्स्ट्रैक्ट लेयर ऊपर जाते जाएंगे, उतनी आपके प्रोग्राम का जो स्पीड है वो कम होती जाएगी, और जितना आप नीचे हार्डवेयर के क्लोज जाते जाएंगे उतनी आपकी स्पीड ज़्यादा होती जाएगी। तो देयर कुड बी सम रूटीन्स वेयर एफिशिएंसी, स्पीड एफिशिएंसी इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस। तो उसमें यू विल राइट दोज पीस ऑफ कोड इन नेटिव लैंग्वेज एंड देन यू विल यूज JNI टू कॉल दिस। अब इस एब्स्ट्रैक्ट सिनेरियो को लेट मी पुट इट इनटू कंक्रीट टर्म्स, और कंक्रीट टर्म्स में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं दैट ओके आई हैव टू फाइंड GPS कोऑर्डिनेट्स। और मैं नेटवर्क असिस्टेड GPS की नहीं बात करूंगा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ओके आई एम यूजिंग द चिप दैट इज बिल्ट इन माई फोन, और एंड आई विल बी टॉकिंग विद द सैटेलाइट सर्विसेज। तो माई एप्लीकेशन लेट मी कॉल इट फाइंड GPS कोऑर्डिनेट्स ऐप और find GPS.apk, और दिस इज उसकी टास्क ये है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है दैट इट विल फाइंड मी माई कोऑर्डिनेट्स, GPS कोऑर्डिनेट्स। अब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में आई विल यूज अ मैनेज्ड सर्विस दैट इज कॉल्ड लोकेशन मैनेजमेंट सर्विस। दिस लोकेशन मैनेजर और दिस लोकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज विल इन टर्न कॉल GPS लोकेशन प्रोवाइडर। अब GPS लोकेशन प्रोवाइडर क्या है? GPS लोकेशन प्रोवाइडर इज अ मैनेज्ड सर्विस जो कि अपर लेयर में जावा की जगह पर है। जावा की जो लेयर है उसमें एक आई हैव अ स्टब दैट इज कॉल्ड GPS लोकेशन प्रोवाइडर। वो क्या करता है दैट इट्स यूजिंग अ JNI कॉल्ड अ GPS लोकेशन प्रोवाइडर दैट इज सिटिंग इन द लाइब्रेरीज सेक्शन, और दैट इज सिटिंग इन द नेटिव कोड। दिस GPS लोकेशन प्रोवाइडर then will call libgps.so. libgps.so is the library that interacts with my GPS chip, and this chip or this driver can interact with the kernel itself. So this is the concrete, अगर वो जो पहले वाला abstract sequence था, अगर उसको मैं थोड़ा सा concrete करूं तो this is the sequence that it follows. That from my application I used binder IPC calls, and binder IPC call I used location services. Location services ने GPS provider को call किया। Location provider जो है वो दो हिस्सों में divided है, एक managed और एक native। managed और native आपस में communicate जो है वो JNI के through करते हैं। After GPS location provider called libgps.so, which is the library or which is the driver that interact with the GPS chip, and this driver also interact with the Linux kernel. So this is how I can call a native library from my application. अब अगर मैं native server को call करना चाहूँ, how would that work? या अगर मैं if I would like to do talk with a daemon, मेरे पास वो VOLD है, मेरे पास radio daemon है, अगर मैं इन दोनों में से कोई सिनेरियो करना चाहूँ, दैट इज आई वांट टू टॉक विद द नेटिव सर्वर, आई वांट टू टॉक विद द ऑडियो फ्लिंगर, मैंने कोई चीज़ ऑडियो प्ले करनी है, या मैंने कोई वीडियो शो करानी है, या मैंने डेमन्स के साथ बात करनी है, वीडियो डेमन हो गया, नेट डेमन है मेरे पास, वॉल्यूम डेमन है, हाउ वुड दैट इंटरेक्ट? वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होगा? हाउ वुड दैट गोज थ्रू दिस डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्टैक? हम इस पे बात करेंगे नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल कंटिन्यू डिस्कसिंग द एंड्रॉयड फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि किस तरह एंड्रॉयड में जब वी कॉल समथिंग एट द अपर लेयर्स, हम एप्लीकेशन लेयर पे जब कोई भी चीज़ कॉल करते हैं तो हाउ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट और हाउ द इंस्ट्रक्शंस फ्लो फ्रॉम द अपर लेयर्स टू द लोअर लेयर्स, और उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इन व्हाट सिनेरियोज। नेटिव सर्विस, नेटिव रूटीन्स जो हैं वो JNI को यूज़ करते हुए किस तरीके से कॉल होती हैं, वेयर डू वी यूज़ बाइंडर IPC कॉल्स एंड वेयर डू वी यूज़ सॉकेट्स। सॉकेट भी तो एक वेल नोन कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म है, तो क्या ज़रूरी है कि हम हर जगह पर बाइंडर IPC कॉल करें? क्या हम किसी जगह पर सॉकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं? वी विल ट्राई टू कवर ऑल दीज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. Till then,
आई एम योर इंस्ट्रक्टर अब्दुल अजीज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।